तो उन्हें आख्या बाजी अंदर आ जाओ, असीं अपनियां गल्लां पे करने, तुहाडियां नहीं पे करते। वो इन्हें दी अंदर टुर गई, अंदर जाके मुंडे नूं बुला लिया, मुंडा उहदी हत्थी पे आ गया साडे मुंडे दी। ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਚੰਗੀ ਮਾੜੇ ਤੇ ਬਿਮਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਲੱਗ ਟੁਰ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਿੱਥੋਂ ਪੁੱਤਰ ਲਿਆਵਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ। कि मकतूल है बेसिकली, उसको मुजफ्फ़र ने छुरियों और खंजर जो है उसके वार करके उसके सर पे, उसको वो शदीद जो है इंजर हुआ, मजरूब हुआ। उसके बाद उसकी सब्सिक्वेंटली डेथ। पहले डंडा मारिया, ਉਹਦੇ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਖੂਨ ਨਿਕਲਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਸੱਟ ਕੇ ਨਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੁਰੀਆਂ ਤੋਂ ਮਾਰ ਕੇ ਕਿੰਨਾ ਮਾਰ ਛੜਿਆ ਸੀ। ਰੋਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹਿ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਬੱਚੀ ਹੈ। ਦੱਸੋ ਮੈਂ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਜਾਵਾਂ, ਕੀ ਕਰਾਂ। एक छोटी सी बात पर मोहल्लेदार ने ही मोहल्लेदार को बड़ी बेरहमी से कत्ल कर दिया। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं उस मकतूल लड़के की वालदा, उनसे हम बात करते हैं। जी माँ जी, बड़ा अफसोस होया है तुहाडे पुत्र दा सुन के, ते वजह की बनी है कि एडा बड़ा मामला हो गया? मेरा पुत्र वजह नहीं, कोई गल नहीं, कोई लड़ाई नहीं, कोई झगड़ा नहीं। मेरा पुत्र चोरियां तो ਉਹਨੂੰ ਅੰਦਰ ਉਹਦੇ ਚੋਰੀਆਂ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਇੱਕ ਚੋਰੀਆਂ 'ਚ ਵੀ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਛਡਵਾਇਆ। ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਅਸਾਂ ਪੈਸੇ ਵੀ ਬੈਂਕਾਂ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਆਹ ਚੀਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਰਾ ਭਰਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਇੰਨਾ ਹੀ ਚਿੰਗ ਵਾਂਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਆ ਕੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਭਰਾ ਬਾਹਰ ਨੇ ਛੋਟੇ ਵਕਤਾਂ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਤੋਰਦੇ ਸਨ ਸਾਨੂੰ ਖਰਚਾ ਤੇ ਖਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਮਹਿੰਦੀ ਸਾਂ ਚੱਲ ਹੈ ਰਹੀ। ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਇੰਨਾ ਦੁੱਖ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜੋੜੇ ਲਾ ਕੇ ਫਿਰਦਾ, ਵਿਹਲਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਚਿੰਗ ਚੀਨੀ ਵਾਂਦਾ। ਚਿੰਗ ਚੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਇੰਜੇ ਰਹਿੰਦਾ, ਆਜ਼ਾਦ ਰਹਿੰਦਾ। ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹੀ ਦੁੱਖ ਖਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਝਗੜਾ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਮੇਰੀ ਨੂੰਹ ਤੇ ਮੈਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਤੇ ਦਾਬੂ ਬੈਠੇ ਨੇ ਵਿਹੜੇ, ਇੰਜੀ ਹੱਸਣ ਖੇਡਣ ਲੱਗੇ ਆ। ਤੇ ਬੂਹੇ 'ਚ ਝਾਤੀਆਂ ਵੀ ਮਾਰਦੀ ਹੈ ਜਨਾਨੀ, ਮਾਰਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਮਸਾਈ ਝਾਤੀਆਂ ਵੀ ਮਾਰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਮੁੰਡਾ ਆਂਦਾ ਅੰਮਾ ਕਿਉਂ ਝਾਤੀਆਂ ਵੀ ਮਾਰਦੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਆਖ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਿਹੜੇ ਆ ਜਾ ਕੇ ਸੁਣ ਲੈ ਗੱਲਾਂ। ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਬਾਦਵਾਂ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪਈ, ਗਾਲਾਂ ਲੱਗ ਪਈ। ਮਸਾਈ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਕੀ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਉਹਦੀਆਂ? ਮਸਾਈ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਸੀ ਵੀ ਸੱਮੇ ਸਾਡੀਆਂ ਹੋਰੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪਏ। ਤੇ ਮੈਂ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਤੇ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਵਿਹੜੇ ਆ ਜਾ। ਐਨੀ ਗੱਲ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਉੱਥੋਂ ਬੁਲਾ ਕੇ ਪੁੱਤਰ ਜਣੇ ਨੂੰ ਤੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਮਰਵਾ ਹੀ ਛੜਿਆ, ਮੇਰਾ ਥਾਂ ਹੀ ਮਾਰ ਛੜਿਆ। ਪੁੱਤਰ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ? ਇੱਕੋ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਚੰਗੀ ਮਾੜੇ ਤੇ ਬਿਮਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਲੱਗ ਟੁਰ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਿੱਥੋਂ ਪੁੱਤਰ ਲਿਆਵਾਂ? ਮੈਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਹੋਵੇ। ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੱਡ ਕੇ ਥਾਂ ਹੀ ਮਾਰ ਛੜਿਆ। ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਰਿਆ ਡੰਡਾ ਤੇ ਫਿਰ ਛੁਰੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਥਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉੱਤੋਂ ਫਿਰ ਚੜਾ ਕੀਤਾ ਪੁਲਿਸ ਲੈਣ ਦੀ, ਮਾਰ ਕੇ ਥਾਂ ਫਿਰ ਪੁਲਿਸ ਲੈਣ ਦੀ। ਪੁਲਿਸ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਬੂ ਨੂੰ ਫੜਨ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਮਾਰ ਛੜਿਆ ਜੇ, ਮੈਂ ਮਗਰ ਜਾ, ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ? ਉਹ ਮਗਰ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਉਹ ਗਏ ਨੇ, ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਮਗਰ ਪੁਲਿਸ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਹਸਪਤਾਲੋਂ ਜਨਾਨੀ ਦੀ ਉਂਗਲ ਤਰੋੜ ਕੇ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਮੱਥੇ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਮਗਰ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਝੂਠਾ ਕੇਸ ਬਣਾਇਆ ਤੁਹਾਡੇ? ਝੂਠਾ ਕੇਸ ਸਾਡੇ ਤੇ ਬਣਾਇਆ। ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਮੈਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਨਸਾਫ ਕੀਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ? ਮੇਰੀ ਆਪ ਗੱਲ ਹੋਈ ਅਫਸਰਾਂ ਨਾਲ ਜੀ, ਡੀਪੀਓ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਵੀ ਤੇ ਐਸਐਚਓ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਵੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ ਕੀਤਾ ਵੈਸੇ? ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਥਾਂ ਮਾਰ ਛੜਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਇਨਸਾਫ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਹੋਵੇ, ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਛੇਤੀ ਹੋ ਜੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਤਰੋੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਛੇਤੀ ਕਰਨ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਫੜਿਆ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਲਾਣ। छोटी छोटी बातों पर किसी की जान ले लेना या मामूली झगड़ों को इस हद तक ले जाना कि कोई किसी को कत्ल कर दे, ये हमारे मुआशरे में बहुत ऐसे वाक़यात सामने आ रहे हैं। और ये चीज़ लम्हा फ़िक्रिया है, अदम बर्दाश्त, ये हमारे मुआशरे को खोखला कर रही है। छोटी छोटी बातों पर गुस्से में आकर अपने अपनों की जान ले लेते हैं। यहाँ पर भी एक ऐसा ही वाक़या पेश आया जिसमें छोटी सी लड़ाई थी हमसायों की और उसको इतना बड़ा कर दिया गया कि एक शख्स को जान से मार दिया गया। मकतूल के वालिद हमारे साथ मौजूद है, उनसे हम बात करते हैं। बुजुर्गों, बड़ा अफसोस है जी ਤੁਹਾਡੇ बेटे का सुन के कि इन्ना मामला ख़राब हो गया कि उसकी जान ले ली। तो झगड़ा वध क्यों गया? गल शुरू कितों हुई कि ऐसा तक चला गया कि ਤੁਹਾਡੇ बेटे को कत्ल कर दिता गया? कोई मेरा मतलब है गल नहीं हुई, कोई बात नहीं हुई। सानू पता ही नहीं सी। आंडियां गुआंढियां दी ते असीं मदद करने करूँ
ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਡਕੈਤੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੇ ਫੜਿਆ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਛਿੜਵਾ ਕੇ ਖੜਿਆ, ਉਸੇ ਨੂੰ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਕਤਲ ਕਰ ਛੱਡਿਆ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਬਾਤ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ, ਝਗੜਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਵੈਰ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਕੋਈ ਮਾਮਲਾਤ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਹਲਕੀ ਫੁਲਕੀ ਲੜਾਈ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੂੰ ਮੈਂ ਹੋਈ ਹੈ? ਔਰਤ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਬੂਹੇ 'ਚ ਖਲੋਤੀ ਹੈ ਤੇ ਬੂਹੇ ਆਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਨੇ ਸਾਡੇ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਉਹ ਨਿਕਲੇ ਬਾਹਰ, ਮੁੰਡਾ ਨਿਕਲਿਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਬਾਜੀ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾਓ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਪੇ ਕਰਨੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਨਹੀਂ ਪੇ ਕਰਦੇ। ਉਹ ਇਹਨੇ ਦੀ ਅੰਦਰ ਟੁਰ ਗਈ, ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਿਆ, ਮੁੰਡਾ ਉਹਦੀ ਹੱਥੀ ਪੈ ਗਿਆ, ਸਾਡੇ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਉਹ ਹੱਥੀ ਪਿਆ ਸੀ, ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਅੰਦਰ ਲੈ ਗਏ ਆ। ਬਾਅਦ 'ਚ ਇੰਨੀ ਬਸ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਮੁੰਡਾ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਮਾਰ ਛੱਡ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਰਿਆ ਨੇ? ਪਹਿਲੇ ਉਹਨੇ ਡੰਡਾ ਮਾਰਿਆ ਉਹਦੇ ਖਾਮਦ ਨੇ, ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਡਿੱਗੇ ਨੂੰ ਛੁਰੀਆਂ ਮਾਰਦੇ ਰਹੇ। ਉਹ ਡੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਗਿਆ, ਬੱਚਾ ਸੀ 18-20 ਸਾਲ ਦਾ, ਉਹ ਡੰਡੇ ਨੇ ਉਹਦਾ ਤੋੜ ਬਤੋੜ ਭੌਂਸਲੇ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਛੁਰੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ। ਇੰਨਾ ਗੁੱਸਾ ਚੜ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ? ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਚੜ ਗਿਆ। ਤੇ ਗੁਆਂਢ ਸਾਡੇ, ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕੋਈ ਦੂਰ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਇੰਨਾ ਫੈਸਲਾ ਗਲੀ ਦੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਉਹ ਨੇ, ਇਸ ਪਾਸੇ ਸੀ। ਕਾਫੀ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਹਮਸਾਏ ਗੁਆਂਢੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ? ਹਾਂ, ਕਾਫੀ ਅਰਸਾ 10, 20, 15 साल हो गए ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉੱਥੇ। ये नाज़रीन, जैसा कि ये मकतूल के वालिद बता रहे हैं कि एक छोटी सी लड़ाई थी, ये लड़ाई तो थी नहीं, थोड़ी आपस में चपकलिश हुई, ख़वातीन की आपस में बातचीत कोई हुई, महल्लेदार औरतों की बात को लेकर के बात इस हद तक बढ़ गई कि इनके बेटे को पहले डंडों से वार करके मारा गया, उसके बाद फिर छुरियों मार कर उसकी जान ले ली। तो हमसायों के तो बड़े हुकूक होते हैं, लेकिन हमारे अब माशरे में ऐसा मामला है बाज़ जगहों पर कि भाई भाई की जान का दुश्मन बाज़ औक़ात बन जाता है सिर्फ अपनी ज़िद, गुस्से और अना की वजह से। तो कुछ मामला यहाँ पर भी ऐसा ही लग रहा है कि जब बात बढ़ी तो एक घर के दूसरे फ़र्द ने उठकर इतना बड़ा कदम उठाया और उनके बेटे को कत्ल कर दिया। नाज़रीन, हमारे माशरे में अदम बर्दाश्त में जो रोज़ बरोज़ इजाफ़ा हो रहा है, ये एक बड़ा लम्हा फ़िक्रिया बनता जा रहा है। मामला छोटी छोटी बात पर किसी को मार देना ये एक मामूली बात बनती जा रही है। मेरी इस प्रोग्राम जुर्म नकाब के ज़रिए से यही कोशिश है कि लोगों को अवेयर किया जा सके। वक्ती गुस्सा इंसान को इस हद तक ले जाता है कि वो किसी की जान लेने से भी बाज़ औक़ात गुरेज़ नहीं करता। एक ऐसा ही वाक़या पेश आया गुजरात में, जिसमें एक हमसाये ने एक हमसाये को मार डाला। लेकिन ख़बर तो बड़ी अफसोसनाक है, लेकिन बाज़ औक़ात ये होता है कि बाद में जिसके साथ जुल्म होता है उस मज़लूम को इंसाफ दिलाना ये आला हुकाम का, आला पुलिस अफसरान की ज़िम्मेदारी बनती है। तो इसको बड़े अच्छे तरीके से निभाया है DPO गुजरात अताउर रहमान साहब ने। उनसे हम बात करते हैं इस केस के हवाले से, किस तरह ये वाक़या हुआ और किस तरीके से उस मुलज़म को जो है इन्होंने गिरफ़्तार करवाया। ताज़ साहब बताइएगा, ये हमसाये ने हमसाये को मार डाला, ये अदम बर्दाश्त के मामलात, इस केस को किस तरह सॉर्ट आउट किया पुलिस ने? जी, बेसिकली ये इंसिडेंट है 11 जून का। 11 जून को हुआ ये कि बेसिकली दो ख़वातीन जो कि आपस में हमसाये थीं, वो आपस में लड़ी। बहुत ही मामूली बात पे बात ये थी कि जी आप मेरे घर की बातें आप सुनती हैं, झांक के सुनती हैं। इस पे बात आगे बढ़ी, उनके दोनों साइडों के जो मर्द हज़रात थे वो भी पेश सामने आए, उनकी लड़ाई शुरू हुई। और इस छोटी सी बात पे उनकी लड़ाई इस हद तक चली गई कि जो तनवीर था, जो कि मकतूल है बेसिकली, उसको मुज़फ़्फ़र ने छुरियों और खंजर जो है उसके वार करके उसके सर पे उसको वो शदीद जो है इंजर हुआ, मज़रूब हुआ। उसके बाद उसकी सब्सिक्वेंटली डेथ हो गई। बहुत छोटी सी बात, लेकिन इतनी छोटी सी बात पे एक इंसान की जान ले ली गई। वो मौके से फ़रार हुआ और पुलिस ने उसका पीछा किया और विदिन 8 डेज़ उसको अरेस्ट कर लिया। आले कत्ल जो है वो भी बरामद कर लिया और अभी जो है मतलब वो हमने उसको जुडिशल करवा दिया है। तो सिर्फ बात ये है कि इतनी छोटी छोटी बातों पे लड़ाइयाँ, तो इंसान के अंदर गुस्सा भी है, एक नेचुरल सी चीज़ है, काबू रखना। हाँ, लेकिन अब इस गुस्से को काबू रखना
और उस गुस्से को उस हद तक जो है वो लेके जाना, और उस आप हमारे अंदर अगर इतना भी नहीं है कि हम अपने गुस्से को, एक लेवल होता है कि उससे आगे ना जाने दिया जाए, लेकिन इस लेवल तक कि एक छोटी सी बात पे एक बंदे की जान लेना, मेरे ख़्याल में ये भी बड़े अफसोस की बात है। और इस पे ये मुआशरा जो है, इसकी एक सोशल एजुकेशन होनी चाहिए। ये अदम बर्दाश्त जो मुआशरे में आ रही है, इससे बहुत सारे मसाइल जन्म ले रहे हैं। पुलिस कोशिश करती है, मुल्ज़िमान को पकड़ती है, लेकिन तब जब ये सारा कुछ हो जाता है, इसको प्रिवेंट करना पुलिस नहीं कर सकती, बिकॉज़ इट इज़ अ सोशल इशू। ये एक सोशल इशू है, और उसके ऊपर काबू रखने के लिए उलमा को भी और तालीमी इदारों के जो सरबराहान हैं उनको भी, टीचर्स को भी, और ओवरऑल जो सोसाइटी है उसके ऊपर काम करना पड़ेगा कि थोड़ा सा ये बर्दाश्त का जो है वो एलिमेंट ये लोगों में आएगा, तो मेरे ख़्याल में इससे बचा जा सकता है। जैसे देखा है कि अब हमारी सोसाइटी में इस तरह की चीज़ें हमें बहुत ज़्यादा कॉमन नज़र आ रही हैं कि लोग बहुत ज़्यादा लो टॉलरेंस जो है उसका शिकार हो चुके हैं। तो ये लो टॉलरेंस जो है बेसिकली दिस इज़ आल्सो अब बिहेवियर के जो कि बहुत ग्रेजुअली जो है वो ग्रो किया, और आहिस्ता आहिस्ता लोग इस चीज़ के ऊपर आ गए हैं। इसके ऊपर कमेंट करना कि जी वो जो है फ़ौरन किस तरह से वो इतना ज़्यादा एग्रीवेटेड जो है उनका एंगर नज़र आया है, और उसके रिज़ल्ट में ये सारी चीज़ें हुई हैं। शी माइट बी दैट पर्सनैलिटी जो कि चीज़ों को बहुत ज़्यादा एग्जैजुरेटेड और मैनिपुलेटिव वे में जो है प्रेजेंट करती हैं, एंड देन शी माइट बी नोइंग के जी जो है उनका वो जो उनकी फैमिली मेम्बर्स, उनके हस्बैंड और सन जो हैं वो भी उसी तरह से जो है, क्योंकि आप जब किसी इंसान के साथ रह रहे होते हो तो आपको उसके ट्रिगर्स, आप किस तरह से उससे बात करेंगे, कौन सी बात उसको इश्ताल जो है वो दिलाएगी, कौन सी बात उसको काम कर सकती है, ये सारी चीज़ें जो हैं वो उनको पता होती हैं। जो मैं समझ सकती हूँ इस चीज़ से वो ये है कि डेफिनेटली दैट फीमेल इज़ ऑलरेडी हैविंग सम रिवेंज, कोई हसद है, कोई रिवेंज है, जिसका रिज़ल्ट जो है वो उन्होंने जैसे उनको मौका मिला है तो शी जस्ट एक्टेड अपॉन, और उसके ऊपर उन्होंने जो है वो अपना बदला जो है वो लेने की कोशिश की है। और ऑफ कोर्स उनके अंदर जो है वो मैनिपुलेटिव टेंडेंसीज उनकी पर्सनालिटी का ज़रूर हिस्सा रही होंगी, जो कि इस तरह से एक बहुत ही ख़तरनाक और इनह्यूमन बिहेवियर जो है वो हमें नज़र आया है, जिस तरह से तकलीफ़ दे के उसको मारा गया है और बहुत ज़्यादा तशद्दुद का जो है निशाना बनाया गया। ये दिस इज़ नॉट समथिंग, एक ऐसे इंसान का रवैया नहीं है जिसने कभी वायलेंस ना किया हो। तो यकीनी तौर पे ऐसे बंदे का जो है वो रवैया हो सकता है जो कि ऑलरेडी वायलेंस में इन्वॉल्व है, और वो डिफरेंट स्टेजेस के ऊपर डिफरेंट काइंड ऑफ वायलेंस जो है एग्जिबिट करता है। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਬਾਜੀ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾਓ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਪੇ ਕਰਨੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਨਹੀਂ ਪੇ ਕਰਦੇ। ਉਹ ਇਹਨੇ ਦੀ ਅੰਦਰ ਟੁਰ ਗਈ, ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਿਆ, ਮੁੰਡਾ ਉਹਦੀ ਹੱਥੀ ਪੈ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਮੁੰਡੇ ਦੀ। ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਚੰਗੀ ਮਾੜੇ ਤੇ ਬਿਮਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਲੱਗ ਟੁਰ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਿੱਥੋਂ ਪੁੱਤਰ ਲਿਆਵਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਚਾਹੀਦਾ कि मकतूल है बेसिकली, उसको मुजफ्फर ने छुरियों और खंजर जो है उसके वार करके उसके सर पे, उसको वो शदीद जो है इंजर हुआ, मजरूब हुआ, उसके बाद उसकी सब्सिक्वेंटली डेथ हो गई। ਪਹਿਲੇ ਡੰਡਾ ਮਾਰਿਆ, ਉਹਦੇ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਖੂਨ ਨਿਕਲਣ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਸੱਟ ਕੇ ਨਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੁਰੀਆਂ ਤੋਂ ਮਾਰ ਕੇ ਕਿੰਨਾ ਮਾਰ ਛੜਿਆ ਸੀ। ਰੋਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹਿ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਬੱਚੀ ਹੈ, ਦੱਸੋ मैं ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਜਾਵਾਂ, ਕੀ ਕਰਾਂ। इस वक्त जी हमारे साथ मौजूद है उस मकतूल शख्स की, उस मकतूल के लड़का था, वो 18-19 साल उसकी एज थी, उसकी बेवा, जिन जालिमों ने उस शख्स को, उस लड़के को, हमसायों ने कत्ल किया है बड़ी बेरहमी से। उनको ये चीज़ का एहसास नहीं था कि एक मासूम, एक छोटा सा बेटा है उसका, और चंद दिनों की बेटी है उसकी। बात करते हैं जी मकतूल शख्स की, उनकी जो बेवा है उनसे। भैन जी बड़ा अफसोस होया सानू, पर यह दसो कि सारा जो वकूआ है उस टाइम तुसी किसे हो?
ਮੈਂ ਘਰ ਸਾਂ, ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਬਹਿ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਲੱਗੇ ਆ। ਉਹਦਾ ਅੰਮੀ ਅਬੂ ਮੈਂ ਤੇ ਉਹਦੀ ਭੈਣ ਸੀ ਘਰ, ਅਸੀਂ ਬਹਿ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਲੱਗੇ ਆ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੀਏ ਬੂਹੇ ਅੱਗੇ ਆਈਏ ਤੇ ਸਾਡੇ ਮੂੰਹ ਆਇਆ ਨੇ ਵਹਿੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਘਰ ਵਾਲੂ ਤੇ ਆਖਦਾ ਮੇਰੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਬਸ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਬਈ ਤੂੰ ਅੰਦਰ ਆ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਲੈ, ਅਸੀਂ ਤੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਪਿਆ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੋਰ ਲੱਗੇ ਆ ਕਰਨ। ਤਿੰਨੇ ਚੋਂ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਈ, ਬਦਵਾਵਾਂ ਦੇਣ ਲੱਗ ਗਈ, ਅੰਦਰ ਆ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਹੀ ਵਿਹੜੇ ਟੁਰ ਗਈ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਵਾੜ ਕੇ ਕੁੰਡੀ ਮਾਰ ਲਈ ਕਿਤੇ ਲੜਨ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਝਿੜਕਣੇ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਝਿੜਕਨੇ ਆ। ਪਿਓ ਦਾ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਚੰਡਾ ਮਾਰਦਾ ਪਿਆ ਤੂੰ ਅੰਦਰ ਚੱਲ ਵਿਹੜਾ ਮਾਲਾ, ਤੂੰ ਨਾ ਲੜਾਈ ਕਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ। ਜਾ ਕੇ ਜਣੇ ਨੂੰ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਤੇ ਸਾਡਾ ਮੁੰਡਾ ਗਲੀ 'ਚ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਨਾਲ ਇੱਦਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਛੁਰੀਆਂ ਨਾਲ ਤੇ ਡੰਡਿਆਂ ਨਾਲ ਮਾਰ ਛੜਿਆ। ਪਹਿਲੇ ਡੰਡਾ ਮਾਰਿਆ, ਉਹਦੇ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਖੂਨ ਨਿਕਲਣ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਸੱਟ ਕੇ ਨਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੁਰੀਆਂ ਤੋਂ ਮਾਰ ਕੇ ਕਿੰਨਾ ਮਾਰ ਛੜਿਆ। ਅਸੀਂ ਰੋਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹਿ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਬੱਚੀ ਹੈ, ਦੱਸੋ ਮੈਂ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਜਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂ। है जवाब किसी के पास? इस मजलूम बीवी के सवाल का जवाब है? क्या वो लड़का वापस आ जाएगा जिसका शौहर है, इस मासूम बच्चे का वालिद? कुछ रहम करें, गुस्से में आकर, बुग़्ज़ में आकर, हसद में आकर ऐसा कदम उठाने वाले लोग, इतनी बेरहमी से इसके शौहर को मारा उन लोगों ने। बहरहाल पुलिस ने बर वक्त कार्रवाई की है। पुलिस इस मजलूम ख़ानदान को इंसाफ दिलाने के लिए गुजरात पुलिस पूरी कोशिश कर रही है। हमारी भी कोशिश है कि हम इनकी आवाज़ हुकाम तक पहुंचाएं और ऐसे ज़ालिमों को बेनकाब होना चाहिए, ऐसे ज़ालिमों को कानून के मुताबिक सज़ा मिलनी चाहिए। अब ये मासूम बच्चा बेटा जिस बात से अनजान है कि इसका बाप भी अब इस दुनिया में नहीं रहा, एक छोटी सी बेटी है उसकी। बहरहाल इंसाफ चाहिए जिस ख़ानदान को, और DPO साहब ने भी यकीन दहानी करवाई है। लेकिन हमारे आला हुकाम से, कानून नाफिज करने वाले इदारों से भी गुजारिश है कि ऐसे कवानीन ज़रूर बने कि, क्योंकि बाज़ औक़ात पुलिस तो बहुत अच्छा काम करती है लेकिन आगे चलकर जो मामलात है वो काफ़ी डिले हो जाते हैं, तो ऐसे मज़लूमों को इंसाफ नहीं मिल पाता। तो ये चीज़ें बेहतर हों ताकि जुल्म करने वाले को कानून के मुताबिक सज़ा मिल सके। एक मामूली सी बात पर एक हमसाये ने अपने हमसाये को कत्ल कर डाला। क्या वजूहात थी, किस वजह पर यह कत्ल हुआ, और जो जालिम जिसने ये जुल्म किया है वो इस वक्त कानून की हिरासत में है। लेकिन इसकी डिटेल्स हम जानेंगे SHO थाना लारी अड्डा गुजरात सैयद शराज हैदर से। शराज, बताइएगा कि क्या मामला था? एक हमसायों की लड़ाई होती है, औरतें लड़ती हैं और मामला कत्ल तक चला जाता है। जी, ये बेसिकली ये 11/6 को हमने जो है वो मुकदमा इसका वकूए का दर्ज किया, और उस दिन बरोज़ वकूआ असल में ये वाक़या हुआ कि ये दो ख़वातीन की आपस में जो है वो पहले किसी बात पे तल्ख़ कलामी हुई, और वो तल्ख़ कलामी बढ़ते बढ़ते इस हद तक पहुँच गई, और माशरे में जो अदम बर्दाश्त का रवैया पाया जा रहा है, इसको देखते हुए ये चीज़ भी उस पर असरअंदाज हुई, और एक जो है वो जवान बच्चा उसके कत्ल तक ये जा पहुँची कहानी। बेसिकली ये मुज़फ़्फ़र उर्फ़ नन्ना था, एक मुल्ज़म उसमें, जिसने इसको छुरियों के वार से जो है वो मारा। उसके बाप ने भी इसको डंडों वगैरह से मारा, और ये इस तरह से उसकी जो डेथ हुई। और हमने जो जो मेन मुल्ज़म है मुज़फ़्फ़र उर्फ़ नन्ना, उसको गिरफ़्तार कर लिया, और उससे जो है वो आला कत्ल भी बरामद कर लिया, और उसको जुडिशल भी भिजवा दिया है। तो इंशाअल्लाह ताला हमारे पास स्ट्रॉन्ग एविडेंस हैं, हम इसी स्ट्रॉन्ग एविडेंस की बेस पे उसको जो है वो हमने जुडिशल किया है, और इंशाअल्लाह उसको कैफ़रे किरदार तक पहुँचाएँगे। डिस्ट्रिक्ट गुजरात का वाक़या है, जहाँ दो ख़वातीन हमसाइयाँ जो आपस में दोस्त थी, उनके दरमियान कुछ नचाकियाँ पैदा हुई, और नचाकी इस हद तक गई कि उनमें आपस में दुश्मनी तक बात चली गई, और एक हमसाई का नौजवान 19-20 साल बच्चे की जान ही चली गई। जो कंप्लेंट में वाक़या रिपोर्ट हुआ है, ये दोनों हमसाइयाँ आपस में दोस्त थी। वो एक हमसाई को दूसरी हमसाई पर शक था कि तुम मेरी बातें अपने घर वालों से जाके करती हो। तो एक दिन वो कान लगाकर उनके दरवाजे के साथ, दीवार के साथ एज़ पर रिपोर्ट बातें सुन रही थी कि उनके घर वालों ने कहा कि बीबी आप बाहर खड़े होकर क्यों बातें सुन रहे, आप अंदर ही आ जाओ, अंदर आके देख लो, हम तो कोई ऐसी बात नहीं कर रहे।
जिसके ऊपर वो गुस्से और तैश में आ गई और उसने अपने घर जाकर उस हमसाई खतून ने अपने खामद को और बेटे को बताया कि मेरी उन्होंने इंसल्ट किया, मेरे साथ ये हुआ, जो है रिपोर्ट हुआ हुआ मैटर। तो उसके ऊपर उसके खामद और भाई बग़ैर तस्दीक किए लड़ने के लिए आगे। जो उनके बकौल रिपोर्ट में डंडा था, छुरियाँ थी, तो उन्होंने उस खातून हमसाई के नौजवान 19-20 साल बच्चे को बुरी तरह तशद्दुद किया, उसके सर में डंडे मारे, छुरियाँ मारी, इतना तशद्दुद किया कि उस बेचारे की जान ही चली गई, जो एक कत्ल अम्द इंटेंशनल मर्डर के ज़ुमरे में आता है। और वजह नात क्या है, दो हमसाइयों की आपस में दोस्ती थी और वो दोस्ती मिसअंडरस्टैंडिंग में गई, गलत फहमियाँ पैदा हुई और फिर गुस्से और तैश में उसके घर वालों ने आके नौजवान बच्चे को ही कत्ल कर दिया। इसकी जितनी भी मजम्मत की जाए वो कम है। भी काफ़ी एविडेंस स्ट्रॉन्ग है, इस शख्स को कानून के मुताबिक ज़रूर सज़ा मिलेगी। श्योर उसका अपना कन्फेशन, लेकिन कन्फेशन के अलावा जो आला कत्ल है वो बरामद हो चुका है और उसके फोरेंसिक भी हमने करवा दिए हैं, उसका भी रिज़ल्ट आ जाएगा, DNA का भी आ जाएगा उसके छुरे के ऊपर। तो इंशाल्लाह इसमें हमारी एविडेंस हमारी तरफ से पूरी है, उसको हो जाएगी सज़ा। मेरी सिर्फ दरख्वास्त ये है कि वाक़यात इस हद तक जाते क्यों हैं छोटी छोटी बातों पे, तो पेरेंट्स को भी चाहिए कि अपने बच्चों को थोड़ा सा शुरू से उनमें बर्दाश्त और हौसला अपने बच्चों में थोड़ा सा डेवलप करें, उनको तालीम और तरबियत जिसका हम नाम देते हैं। तो तालीम तो दी जा रही है लेकिन तरबियत नाम की कोई चीज़ नहीं है, तो इसको थोड़ा सा देखा जाना चाहिए कि सोसाइटी जो है वो अदम बर्दाश्त का शिकार बहुत ज़्यादा हो चुकी है। ये जी जिस तरह से DPO गुजरात अता साहब ने बता दिया है कि अदम बर्दाश्त का जो फैक्टर है इस पर काबू पाना चाहिए। इसमें मीडिया भी अपना रोल प्ले करेगा, इंशाल्लाह ताला कर भी रहे हैं हम अपने तौर पर अपने प्रोग्राम्स में। मेरे प्रोग्राम में यही कोशिश होती है कि सिर्फ मुलजमान केसेस के हवाले से ना बताऊं, ताकि वो जुहाद भी बताए जाएँ। अब वो शख्स, वो हमसाया जिसने खंजर मारकर अपने हमसाए को मार दिया, अब वो भी कानून की हिरासत में है, कानून की गिरफ्त में है। अब उसकी फैमिली भी जो है उसको भी नुकसान है। तो बजाय इसके कि गुस्से में आकर आप दूसरों को नुकसान पहुंचाएंगे, साथ साथ आपका अपना भी नुकसान होता है। इसलिए कोशिश करें कि गुस्सा, हसद, बुग़्ज़ इस तरह के मामलों से दूर रहें ताकि इस तरह के ख़तरनाक इशूज़ से बचा जा सके। बहरहाल टीम जुर्म बेनकाब की हमेशा कोशिश रहेगी कि अच्छे अफसरान के साथ मिलकर ना सिर्फ जुर्म को बेनकाब करें बल्कि अवाम को अवेयर भी करें। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਬਾਜੀ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾਓ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਪੇ ਕਰਨੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਨਹੀਂ ਪੇ ਕਰਦੇ। ਉਹ ਇਹਨੇ ਦੀ ਅੰਦਰ ਟੁਰ ਗਈ, ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਿਆ, ਮੁੰਡਾ ਉਹਦੀ ਹੱਥੀ ਪੈ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਮੁੰਡੇ ਦੀ। ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਚੰਗੀ ਮਾੜੇ ਤੇ ਬਿਮਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਲੱਗ ਟੁਰ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਿੱਥੋਂ ਪੁੱਤਰ ਲਿਆਵਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ कि मकतूल है बेसिकली, उसको मुजफ्फर ने छुरियों और खंजर जो है उसके वार करके उसके सर पे, उसको वो शदीद जो है इंजर हुआ, मजरूब हुआ, उसके बाद उसकी सब्सिक्वेंटली डेथ हो गई। ਪਹਿਲੇ ਡੰਡਾ ਮਾਰਿਆ, ਉਹਦੇ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਖੂਨ ਨਿਕਲਣ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਸੱਟ ਕੇ ਨਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੁਰੀਆਂ ਤੋਂ ਮਾਰ ਕੇ ਕਿੰਨਾ ਮਾਰ ਛੜਿਆ ਸੀ। ਰੋਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹਿ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਬੱਚੀ ਹੈ, ਦੱਸੋ ਮੈਂ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਜਾਵਾਂ, ਕੀ ਕਰਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਕਿ ਕੌਣ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਕਾਤਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕੌਣ ਸੇ? ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਤਾਂ ਫੜ ਲਿਆ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। 4 ਬੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ, ਇੱਕ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਫੜ ਲਿਆ, 3 ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਪਏ ਮੇਨ ਬਾਹਰ। ਮੁਲਜ਼ਮ ਤਾਂ ਫੜ ਲਿਆ ਨਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ? ਨਹੀਂ, ਮੇਨ ਮੁਲਜ਼ਮ ਉਹ ਵੀ ਮੇਨ ਹੀ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਵੀ ਮੇਨ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਲੀ ਨਹੀਂ ਫੜਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਪੂਰੀ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ। ਬੋਲੋ ਜ਼ਮਾਨਤ ਕਰਾਈ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ DPO ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ, ਜੀ ਅਤਾ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਮੈਰਿਟ ਤੇ ਲਾਵਾਂਗੇ ਜੀ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੇ ਵੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਜੋ ਹੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁੱਕਦੀ ਹੈ ਉਹ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਫੜੇ ਜਾਣਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਬਸ, ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ। ਤੇ SHO ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਯਕੀਨਦਾਨੀ ਕਰਾਈ ਹਾਂ, ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ। ਕਿ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਕੱਮਲ ਇਨਸਾਫ ਹਾਂ, ਮਿਲੇਗਾ। ਇਨਸਾਫ ਮਿਲੇਗਾ। SHO ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਯਕੀਨਦਾਨੀ ਕਰਾਈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲੇਗਾ। बिल्कुल सही है जी। हमारी भी बात हुई है जी DPO साहब से भी और SHO साहब से भी, और उन्होंने यही बताया कि इस केस को हम मेरिट पर देख रहे हैं, कोई किसी को रियायत नहीं दी जाएगी। और ये अदम बर्दाश्त वाला जो मामला है
इसको ख़त्म करने की ज़रूरत है ताकि कोई किसी की जान ना ले। अब जिस शख्स ने इनके बेटे की जान ली उसने अपने ख़ानदान पर भी इल्ज़ाम ढाया है, पूरा ख़ानदान। वो ख़ुद भी जब पकड़ा, जो पुलिस की जो मेन मुलज़िम है पुलिस की हिरासत में है, दूसरे लोग ज़मानतों पर, वो भी इंशाल्लाह जल्द गिरफ़्तार कर लिए जाएंगे। तो इस तरह के मामलात में मत पड़े। हमसाए का दुश्मन बनकर अब खुद ज़मानतें कराते फिर रहे हैं, भागते फिर रहे हैं, घर में जाने से डरते हैं। तो आप उस वक्त अपने आप पर काबू रखें जब खुदा न खासा गुस्से की वजह से आप अंधे होकर कोई ऐसा कदम उठा लेते हैं जो कि आप लोगों के लिए और दूसरों के लिए भी बहुत ज़्यादा नुकसानदेह होता है। अच्छा, इसमें कुछ और लोग भी जैसे कि वो जिसने डंडा मारा उसकी मजलूम की वालदा भी हमें बता रही थी कि वो शख्स वो अबूरी ज़मानतों पर हैं, उनके हवाले से आप क्या कहेंगे कि कब तक उनको जो है वो भी कानून की गिरफ्त में आ जाएंगे? जी इंशाल्लाह वो भी इन्वेस्टिगेशन जारी है और मुलज़मान जो हैं वो बकाया जो हैं वो अभी प्री अरेस्ट पे हैं और जैसे ही वो इन्वेस्टिगेशन हमारी कंप्लीट होगी तो इंशाल्लाह ताला उनकी ज़मानतें भी जो हैं वो उनके बारे में भी हम जो है वो डिसीजन लेंगे इंशाल्लाह ताला और अदालत से उनको भी इस्तदा करेंगे, इनको भी कैफ़े के दार तक पहुँचाया जाए। बिल्कुल सही है जी, क्योंकि हमारी कोशिश है टीम जुर्म में नकाब की कि जो मज़लूम है बेचारा जिसके साथ जुल्म हुआ है उसको जितनी ज़्यादा रिलीफ मिल सके ज़रूर मिले। लेकिन यहाँ पर काबिल सताइश है काविश स्पेशली DPO गुजरात अतौर रहमान साहब की, गुजरात पुलिस की, और जो जितने भी अफसरान हैं और स्पेशली ये जो एरिया है थाना लारी अड्डा का जिसके SHO हैं सैयद शिराज हैदर, तो इन लोगों ने मज़लूम का साथ दिया क्योंकि हमें हमारी बात हुई है उस औरत से। उसने बताया जी कि जिसने लड़ाई की, जिन्होंने मारा है, उन्होंने उंगली तोड़ के ख़ुद भी उन पर उल्टा केस करवाने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने हक़ का साथ दिया। और हमारी यही कोशिश है कि हमेशा जहाँ पर जुल्म होता है मज़लूम पर, वहाँ पर उस मज़लूम को इंसाफ मिले और जालिम को कानून के मुताबिक सज़ा मिले। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਬਾਜੀ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾਓ, ਅਸੀਂ ਜੇ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਪੇ ਕਰਨੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਨਹੀਂ ਪੇ ਕਰਦੇ। ਉਹ ਇਹਨੇ ਦੀ ਅੰਦਰ ਟੁਰ ਗਈ, ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਿਆ, ਮੁੰਡਾ ਉਹਦੀ ਹੱਥੀ ਪੈ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਮੁੰਡੇ ਦੀ। ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਚੰਗੀ ਮਾੜੇ ਤੇ ਬਿਮਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਲੱਗ ਟੁਰ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਿੱਥੋਂ ਪੁੱਤਰ ਲਿਆਵਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ। कि मकतूल है बेसिकली, उसको मुजफ्फर ने छुरियों और खंजर जो है उसके वार करके उसके सर पे, उसको वो शदीद जो है इंजर हुआ, मजरूब हुआ, उसके बाद उसकी सब्सिक्वेंटली डेथ हो गई। ਪਹਿਲੇ ਡੰਡਾ ਮਾਰਿਆ, ਉਹਦੇ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਖੂਨ ਨਿਕਲਣ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਸੱਟ ਕੇ ਨਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੁਰੀਆਂ ਉਹ ਤੋਂ ਮਾਰ ਕੇ ਕਿੰਨਾ ਮਾਰ ਛੱਡਿਆ ਸੀ। ਰੋਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹਿ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਬੱਚੀ ਹੈ, ਦੱਸੋ ਮੈਂ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਜਾਵਾਂ, ਕੀ ਕਰਾਂ। यूजुअली होता है इस तरह से कि जब जिन लोगों को ऑलरेडी शक करने की आदत होती है किसी दूसरे इंसान के ऊपर या वो शक करते हैं, तो उस शक की नज़र में कोई भी चीज़ जो है वो हो सकती है। यानी मे भी जिस तरह से हमने स्टोरी में देखा है कि जी सिर्फ उनको शक हुआ है, गलतफहमी पैदा हुई है कि शायद वो खातून जो है वो उनके या उसके घर वाले जो हैं उस खातून के बारे में बात कर रहे हैं। सो यूजुअली वो लोग जो कि शक का शिकार होते हैं वो किसी भी एक्सट्रीम हद तक जो है वो जा सकते हैं और फिर उस शक को मे बी वो किसी भी हद तक का जो है हकीकत का रंग देने की जो है कोशिश कर सकते हैं जो उनके अपने जहन में जो है चल रहा होता है। एंड देन जो है अगर लोगों में जिस तरह से गली मोहल्ले में अक्सर इस तरह की चीज़ें जो देखने में आती हैं कि लोगों में बहुत लो टॉलरेंस जो है वो नज़र आता है, लोग एक दूसरे के बिहेवियर को जो है वो उस तरह से जो है वो लेट गो नहीं करते या फिर उसको बिल्कुल भी जो है आप जिसको कहेंगे कि फॉरगिवनेस वाला जो एलिमेंट है वो हमारी सोसाइटी में बहुत ज़्यादा कम होता जा रहा है। तो वो लोग जो कि इंटॉलरेंस का शिकार होते हैं या जिन लोगों में बुग़्ज़ बहुत ज़्यादा होता है, हसद बहुत ज़्यादा होता है या फिर जो है दूसरों से वो बहुत ज़्यादा जलन कर रहे होते हैं, तो यूजुअली वो लोग जो है वो किसी भी एक्सट्रीम तक पहुंच सकते हैं अपनी जलन में दूसरों से बदला लेने के लिए। जैसे में भी ये जो खातून है इनका ऑलरेडी जो है कोई ना कोई ऐसी रिफ्ट जो है वो पहले से चल रही है एंड शी जस्ट
क्वाइन दैट, और वो उनके दिमाग में रेप्लिकेट की हैं चीज़ें, एंड शी जस्ट कंक्लूडेड दिस के लिए अपने बेटे और हस्बैंड को इस तरह से एग्जैजुरेटेड स्टोरी जो है वो बताएं, और फिर वो जो है अल्टीमेटली ये जो अनफॉर्चुनेट एक इंसिडेंट हुआ है वो उसकी तरफ जो है वो लीड करें। एंड ऑनेस्टली दिस इज़ नॉट एक्सेप्टेबल। ਜਿਹੜਾ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਉਹਨੇ ਛੁਰੇ ਮਾਰੇ ਨੇ? ਉਹਨੇ ਛੁਰੇ ਮਾਰੇ ਨੇ ਤੇ ਪਿਓ ਨੇ ਡੰਡੇ ਮਾਰੇ ਨੇ। ਪਿਓ ਡੰਡੇ ਮਾਰ ਕੇ ਤੇ ਇੰਜ ਥੱਲੇ ਸੱਟ ਲਿਆ, ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਖੂਨ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਉਹਨੇ ਥੱਲੇ ਸੱਟਿਆ, ਜਦੋਂ ਮਾਰਿਆ ਨੇ ਡੰਡਾ, ਪੁੱਤਰ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗ ਪਿਆ। ਪੁੱਤਰ ਡਿੱਗੇ ਨੂੰ ਫਿਰ ਛੁਰੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਛੱਡੇ ਹੀ ਕੱਖ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਬਦਲਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਲਾਉਣ ਨਾ ਪਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਛੇਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹਮਸਾਈ ਸੀ ਤੁਹਾਡੀ, ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਘਰ ਉਹ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਆਏ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ 10-11 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਆਇਆ। ਉਹ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਵੈਸੇ ਠੀਕ ਸੀ? ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਲੜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਸੀ? ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਝਗੜਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਮਾੜੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਸਿਰਫ ਹੈ ਇਹ, ਮੈਂ 11ਵੀਂ ਦਾ ਖਤਮ ਦਵਾਉਂਦੀ ਸਾਂ, ਮੈਂ ਖਤਮ ਦਵਾਉਂਦੀ ਸਾਂ, ਦੁੱਖ ਕਰਦੀ ਸੀ ਵੀ ਖਤਮ ਕਿਉਂ ਦਵਾਉਂਦੀ ਤੇ ਇਹਦਾ ਪੁੱਤਰ ਜੋੜੇ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਕਿਉਂ ਫਿਰਨਾ। ਇਹ ਦੁੱਖ ਮੇਰੇ ਅਸਦ ਕਰਦੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਕੋ ਨਾ ਸਾਕਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਚਾਹੀ ਅਸਦ ਕਰਦੀ ਅਸਤ ਕਰਦੇ, ਨਾ ਕੋ ਸਾਡੀ ਸਾਕਾ ਗਿਰੀ, ਨਾ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਲੈਣ ਦੇਣ, ਨਾ ਸਾਡਾ ਮੈਂ ਖਤਮ ਦਵਾਉਂਦੀ ਸਾਂ ਤੇ ਥਾਲੀਆਂ ਭਰ ਭਰ ਕੇ ਉਹਦੇ ਘਰ ਚੌਲ ਦਿੰਦੀ ਸਾਂ। ਮੈਂ ਤਾਂ 11ਵੀਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹਰ ਬੰਦਾ ਖਾਏ, ਉਹ ਉਸ ਜੜੇ ਦਾ ਜੀ 11ਵੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ਮੁੱਕ ਗਈਆਂ, ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਵੀ ਮਖਾ ਚੜਿਆ। ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਉਹੀ ਸਾਨੂੰ ਕੱਢ ਦੇਵਾਜੇ ਸੀ ਰਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਅਸੀਂ ਮੁੱਕ ਗਿਆ ਨਿਕਲ ਕਰ, ਮੇਰਾ ਪੋਤਰੀ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਮੇਰੇ 17-18 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਵੀ ਮੇਰਾ ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਜਵਾਨ ਜਾਨ ਮੇਰੀ ਨੂੰ। ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ? ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਸਾਲ ਦਾ ਤੇ ਇੱਕ ਧੀ ਉਹਦੇ ਤੇ 5 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਸੀ ਜਿੰਦਨ ਮਾਰਿਆ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਉਹਦੀ ਜਨਾਨੀ ਦਾ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਕੱਟੀ ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਈ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੰਝ ਕਰਕੇ ਦੇ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਖੁਦਾ ਵਾਸਤੇ ਦਾ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਮਾਰ ਦਿਓ, ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਂ ਜੇ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਮਾਰ ਦਿਓ। ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਕਸੂਰ ਦੱਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਆਰ ਪਾਸਿਓ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਛਡਾਉਂਦਾ, ਆਰ ਪਾਸਿਓ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛਡਾਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਮਾਰ ਦਿਓ ਮੇਰੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤਰਸ ਨਹੀਂ ਖਾਦਾ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਸੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਰੋਂਦੇ ਬਾਹਰ ਚਲੇ। ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਪੁੱਤਰ ਲੱਭੀਏ, ਕਿਹੜੇ ਤੋਂ ਲੱਭੀਏ ਪੁੱਤਰ। ये जी इस माँ की आहो पुकार है जी। जवान बेटा माँ की नज़रों के सामने बड़ी बेदर्दी से तड़पा कर उन जालिमों ने मार दिया। इस केस के हवाले से मेरी बात हुई है DPO गुजरात अतौर रहमान साहब से, और उन्होंने कहा है जी कि वो जिस लड़के ने छुरे मारे हैं उसको गिरफ्तार कर लिया गया है, आला कत्ल भी बरामद कर लिया है। जो लोग ज़मानतों पर हैं उनको भी पुलिस जो है कानून के मुताबिक जो है उनको गिरफ्तार भी करेगी और उनको कैफरे किरदार तक पहुँचाएगी। और कोशिश यही रहेगी कि इस मजलूम माँ की इस अहो पुकार को आला हुकाम तक ऑलरेडी DPO गुजरात के अहकामात पर गुजरात पुलिस बर वक्त कार्रवाई कर चुकी है। और हमारी भी ये गुजारिश है कि अब आगे जब ये केस चले तो उसमें कानून के मुताबिक इस माँ को ज़रूर इंसाफ मिले और उन जालिमों को कानून के मुताबिक कड़ी से कड़ी सज़ा मिले जिन्होंने एक माँ के लगते जिगर को, एक बुज़ुर्ग माँ बाप के बेटे को उनकी आंखों के सामने तड़पा कर मार डाला। उसके बाद एक और अलमिया देखिए कि लोग करते क्या हैं कि जब खुदा न खासा ये लड़ाई झगड़ा होता है तो किसी की जान ले लेते हैं, तो फिर अपना वकूआ बना लेते हैं। जैसे कि माँ ने बता दिया कि खुद ही तोड़ के अंगूठा खुद ही पेश हो गए। लेकिन ये तो यहाँ पर DPO गुजरात अतौर रहमान और उनकी पूरी जो गुजरात पुलिस स्पेशली थाना दारी अड्डा के जो SHO हैं, उनकी जो सारे मामलात हैं वो बेहतर थे। उन्होंने उन झूठों पर एतबार नहीं किया, इन मजलूमों की आवाज़ सुनी है और इनके हक में फ़ैसला ये किया है कि केस भी दर्ज किया और एक जो मेन मुलज़िम है गिरफ्तार हो चुका है। लेकिन ऐसे वाक़यात होते क्यों हैं, ये वजह ढूंढने की ज़रूरत है, इस चीज़ को हल करने की ज़रूरत है। अब इस माँ की तड़प जो है वो ये माँ ही महसूस कर सकती है, कोई और नहीं कर सकता। बहरहाल अल्लाह ताला हम सब पर रहम करे और जहाँ तक हमारी कोशिश है कि ऐसे मजलूमों को कानून के मुताबिक इंसाफ भी दिलवाएंगे और इनकी आवाज़ आला हुकाम तक भी पहुँचाएंगे।